Aunt Jennifer Tiger is a poem which is written by Adrienne Rich, and in this poem, you come to know about the male dominated society and male patriarchal society. So, Aunt Jennifer Tiger. Aunt Jennifer Tiger is one of the best poem which also be describes about the reality of the condition of women in the male dominated society. And Adrienne Rich is one of the great poetess who also be describe about the reality of the condition of women in the male dominated society, in the male patriarchal society. And in this poem, Adrienne Rich describes about the condition of a woman. She describes that how a woman describes about her condition in male dominated society with the help of the tigers, how she relates herself with the tigers, how she relate to a tiger with the male dominated society. A man who also describes himself as a totally free in with all bondings, and he is also like a freedom free individual being. So um, so first, it is important for us to read about Adrienne Rich. Adrienne Rich, who was born in 1929. Adrienne Rich was born in 1929. She was born in 1929 and she was a contemporary feminist poet. She was contemporary, a feminist poet. Through her poetic works, tried to awaken the consciousness of modern women. And with the help of her work, she always tried कि वो women की consciousness को दिखा सके. And modern women की, she was concerned about the growing numbers of women in the world being marginalized, improvised, scapegoated and belittled. Women के लिए इन words का use क्यों किया? She describes about the reality, about the real life of the condition of the women in the male dominated society. So she described that women are marginalized, improvised, scapegoated and belittled. So in this poem, Aunt Jennifer Tiger, Adrienne Rich describes about the condition of a woman. In the poem Aunt Jennifer represent women all over the world, particularly women in America during 1950. इस पोएम के अंदर पोइटेस दैट वाज एड्रीन रिच, उन्होंने 1950 की विमेन जो अमेरिका में है, मॉडर्न विमेन, उनकी कंडीशन के बारे में बताया है. हु वर कॉट अंडर द ऑप्रेसिव हैंड ऑफ ए पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक तरीके से उनके हैंड से ऑप्रेस होती है. पेट्रियार्कल मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती है विमेन, उनकी कंडीशन के बारे में एड्रीन रिच ने बताया. In this poem, Aunt Jennifer is suppressed by the dictates of the male-dominated society. She is pinned down by the massive weight of Uncle Wedding's band. इसके अंदर जो आंट जेनिफर टाइगर है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अंकल वेडिंग बैंड है, दैट इज़ अगर एक विमेन एक रिलेशनशिप में आती है, उसकी मैरिज हो जाती है, तो विमेन ये बताती है कि जो मेरे हाथों में रिंग है, दैट वाज मैसिव बैंड, दैट वाज मैरिड बैंड, वो एक तरीके से सिंबलाइज है मेरे ऑप्रेस्ड का, मेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेरे फियर का. तो पोइटेस यही क्लियर कर रही है कि एक तरीके से ये बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में दब कर रहते हैं, हमारे ऊपर रूल होता है, हमें कमांड मिलती है और हमें उसे फॉलो करना पड़ता है. जो एड्रीन रिच हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो अपने थ्रू टाइगर्स की इमेज को क्रिएट करती हैं और इस पोएम के अंदर वो विविंग कर रही हैं, वो बुन रही हैं. उन्होंने टाइगर की इमेज को क्रिएट किया, उन्होंने टाइगर को बताया कि वो टोटली फ्री रहता है. ठीक है, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ बनाई है और वो उनकी जो हाथों की उंगलियां हैं सारा दिन विविंग कर करके ऐसी हो गई हैं, लाइक यू कैन सी द इमेज कि उनकी जो उंगलियां हैं उनके अंदर भी जान नहीं रही है, पर उनके हाथ का जो मैसिव जो बैंड है, मैरिड बैंड है, वो आज भी उनके ऊपर एक बर्डन की तरह काम कर रहा है. Then what she describes that the poem is a clear settlement of conflict in women, specifically between the impulse to freedom and imagination. And she also make the diagram and the pictures of the tiger, which also symbolize about the freedom in the complete jungle. She also made the imagination in the tapestry of prancing tigers and the massive weight of gender roles and expectations signified by uncle's wedding band. और वो ये बताती हैं, ये जो एक तरीके से मेरे हाथों में जो ये रिंग है, दैट वाज अ सिंबल ऑफ द मैरिज लाइफ और दैट वाज अ सिंबल ऑफ फियर, दैट वाज अ सिंबल ऑफ अ प्रेजेंस. तो वो ये क्लियर करती हैं कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक सिंबल है कि अब हम मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी में और हमें डोमिनेट होना पड़ेगा.
द पोएम ब्रिंग्स आउट ए विमेन स्ट्रगल, और इस पोएम के अंदर पोइटेस ने विमेन की स्ट्रगल के बारे में मेंशन किया है, उन्होंने रिबिलियन के बारे में और सोसाइटी के अंदर उन्होंने मस्कुलिन पावर के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी, और यहाँ पर विमेन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और लास्ट में विमेन और जो एड्रेनी रिच है वो यही बात क्लियर करती हैं, वो ये क्लियर करती हैं कि अब तक हमने काफ़ी फ़ाइट किया बट वी आर फेल, वो हम अपने राइट्स नहीं ले सके और हम टोटली फेल हो चुके हैं और मैं अब हार मानती हूँ इन सब सिचुएशन के आगे। वो उन्होंने अपने घुटने टेक दिया है। उन्होंने ये बोला है कि मैंने जो ये टेपेस्ट्री बनाई है, जो टाइगर्स की इमेज बनाई है, इनके थ्रू मैं अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं लड़ सकूँ। तो वो ये कहती है जो मैसिव बैंड है, जो मैरिड बैंड है, जो एक तरीके से सिंबलाइज है कि शादी के बाद एक विमेन हमेशा एक मैन के कमांड के अंडर काम करती है। तो उन्होंने टाइगर इस पोएम आंट जेनिफर टाइगर में उन्होंने टाइगर के थ्रू अपनी हर थॉट और फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस किया है। तो एक तरीके से अगर हम पोएम की बात करते हैं विद लाइन टू लाइन, तो वो क्या कहती हैं, शी सेड कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर ये बोलती हैं कि मैंने स्क्रीन पर टाइगर तो बना दिया, मैंने एक स्क्रीन पर टाइगर की इमेज क्रिएट कर दी है, और ये जो टाइगर हैं ये आंट जेनिफर टाइगर के नाम से जाने जाते हो कि ये प्रिंस पर है, मतलब एक पिक्चर इनकी मैंने वॉल पर क्रिएट कर दी है, मैंने अपने हैंड से उन्हें बुना है। ब्राइट टॉपेज डेनिसन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये जो टाइगर है ये क्या सिम्बोलाइज करते हैं, ये सिम्बोलाइज करते हैं ग्रीनरी का। ये फुल ऑफ जंगल में रहते हैं और ये टोटली फ्री हैं हर एक डर से, इन्हें डर नहीं लगता, ये हर एक कमांड से फ्री हैं। ये एक तरीके से मस्कुलिन पावर को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में इनका रूल है। ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स मतलब एक पिक्चर के अंदर इन्हें वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के अंदर दिखाया हुआ है, लाइक दिस इन्हें दिखा रखा है, यस लाइक दिस। ये एक टोपेस्ट्री एक मिनिस्ट्री के अंदर है और एक फोटोग्राफ के अंदर वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ ग्रीन में ये फियरलेस होकर घूम रहे हैं, इन्हें कोई डर नहीं, इन पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई कमांड नहीं है। तो वो यही बता रही है जो टाइगर्स है, ये जो मैन है ना, मस्कुलिन पावर है, जो मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये केवल इन्हीं टाइगर्स की तरह हैं जिन पर कोई कमांड नहीं है, जस्ट विमेन को कमांड करते हैं और विमेन इनके अंडर काम करती है, पर ये किसी के अंडर काम नहीं करते, ये किसी को कोई इनको कमांड नहीं करता और ये फुल ऑफ फियरलेस है। तो उन्होंने टाइगर को किसके साथ कंपेयर किया है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के साथ, उन्होंने मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी के साथ टाइगर को कंपेयर किया है। तो पोइटेस क्या कहती हैं, शी सेड कि एक तरीके से क्या होता है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उन्हें ये भी डर नहीं है कि ट्री के पीछे कोई इंसान छुपा हुआ है। टाइगर्स आर टोटली फियरलेस लाइक मैन, दे पेस इन सीक चिवार्डिक सर्टेनिटी, और वो इस संसार में टोटली चिवार्डिक होकर घूमते हैं, मीन्स टोटली फियरलेस होकर घूमते हैं, इनके अंदर कोई भी डर नहीं है, दे आर टोटली स्ट्रोंग, they have power to face any bad things and they are totally strong. The first stanza tells us what Aunt Jennifer Tiger really are. These are not living tigers but images created by her on the tapestry. The fact that they are bright topaz denizens conveys the idea that they are transparent and not real living tigers. अब देखिए इस स्टांजा में पोइटेस यही क्लियर कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आंट जेनिफर के टाइगर हैं क्या, ये टाइगर केवल टाइगर, ये लिविंग टाइगर नहीं है, ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस जो वो इमेजिन करती है, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करती है, जो उसने टेपेस्ट्री पर बनाई है, वॉल पर उन्होंने बनाई है। तो वो ये कह रही है जो ब्राइट टोपेज डेनिजन्स है ना, ये कन्वे करते हैं एक आइडिया कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये रियल नहीं है, बट ये क्या दिखा रहे हैं, मस्कुलिन पावर को दिखा रहे हैं। जो थर्ड फोर्थ लाइन है, दैट वाज दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लिक चिवालिक सर्टेनिटी, ये क्या बताती है, टाइगर की क्वालिटीज़ के बारे में बताती है कि जो टाइगर हैं वो किस तरह से पोर्ट्रे किए हुए हैं, वो फियरलेसनेस, असर्शन, पावर, इन तीनों चीज़ों को दिखाते हैं। आयरनिकली दीज वर द क्वालिटीज़ द क्रिएटर ऑफ दिस टाइगर्स, और ये सभी क्वालिटीज़ आंट जेनिफर किया, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, उन्होंने बैड सर्कमस्टांसेस फेस किए, उन्होंने मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल डोमिनेशन फेस किया, वो लास्ट तक लड़ती रही, पर नाउ शी इज़ ओल्ड, और उन्होंने अब हार मान लिया और वो ये कह रही है मैं अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को इन टाइगर के थ्रू टेपेस्ट्री पर बनाकर दिखा रही हूँ। Ironically, these were the qualities the creator of these tigers, Aunt Jennifer, didn't possess or were denied to her by the patriarchal society in which she lived. The tigers walk with elegance, grace and confidence. वो ये कह रही है मैं मनाही तो नहीं कर रही हूँ,
मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि मैं इस मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहती हूँ या मैं फेस कर रही हूँ, बट ये जो टाइगर मैंने बनाया है ये ग्रेस, कॉन्फिडेंस और एलिगेंस को सिम्बोलाइज करते हैं। ये बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस एनीथिंग, और दे आर टोटली fearless, they have no fear at all, and they have power. दे आर सर्टेन ऑफ हु दे आर एंड वट दे वॉन्ट। अब वो ये क्या कह रहे हैं, ये जो टाइगर्स हैं ये वो कर सकते हैं जो ये चाहते हैं, बट इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वीमेन वो चीज़ें नहीं कर सकती जो वो चाहती हैं, उन्हें वही करना पड़ता है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उन्हें कमांड दी जाती है। टाइगर्स हैव सिम्बोलाइज मैन हु डोमिनेट द सोसाइटी लाइक द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। जो टाइगर हैं वो सिम्बोलाइज करते हैं एक मैन को जो सोसाइटी में विमेन को डोमिनेट करती हैं, और एक तरीके से जो टाइगर्स हैं फॉरेस्ट में वो क्या सिम्बोलाइज करते हैं, मस्कुलिनिटी को, एक तरीके से उस मैन को जिनके अंदर पावर है, जो विमेन को डोमिनेट करते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एंड दे एंजॉय अनकॉशन्ड फ्रीडम। और ये जो टाइगर्स हैं ये एक जंगल में रहते हैं, सेम ऐसे जो मैन है वो वर्ल्ड में रहते हैं, और उनको फियर नहीं होता, उनके ऊपर कोई कमांड नहीं होती, और वो कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं उनको कुछ फेस करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैन है वो मस्कुलिन पावर को दिखाते हैं, और जो विमेन है वो उनके जो बातें होती हैं उनको विमेन फेस करती हैं। तो पोइट क्या बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इन मस्कुलिन पावर में, और एक तरीके से इस मस्कुलिन सोसाइटी में, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में या इस मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मैन है उनकी कमांड को विमेन को फॉलो करना पड़ता है और उनके अंडर विमेन को काम करना पड़ता है। तो इन द सेकेंड स्टांजा जो पोइट एंड दैट वाज एड्रीना रिच, जो पोइटेस हैं वो ये कह रही हैं, आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर ने अपनी बातें, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, अपना डिज़ायर, अपने फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ, पावर, वो सभी चीज़ें उन्होंने टाइगर को टेपेस्ट्री पर बनाकर विद द हेल्प ऑफ टाइगर उन्होंने शो की है। उन्होंने ये कहा है जो आंट जेनिफर है वो अपनी फिंगर से फ्लटरिंग हो रही है, अब उनके फिंगर काँप रही हैं, क्योंकि वो वूल पर सारा दिन इन टाइगर को टेपेस्ट्री पर बनाने में लगी रहती है। नाउ शी इज़ ओल्ड, अब उनकी फिंगर की कंडीशन कैसे हो गई है, वो सारा दिन टेपेस्ट्री पर टाइगर्स को बनाती रहती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वीविंग करके उनकी कंडीशन अब कैसी हो गई उनके हैंड्स की, क्योंकि अब उनके हैंड्स में इतनी जान नहीं रही है, फिंगर में इतनी जान नहीं रही है, ना उनकी लाइफ में जान रही है कि वो ये जो मैरिड बैंड है मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में उसके बर्डन को सह सकें। उनका मन करता है कि वो इससे आज़ादी पा लें। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो नीडल को चला सके या नीडल के अंदर धागा डाल सके, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बिकॉज शी इज़ टोटली ओल्ड नाउ। वो ये कह रही है जो मैसिव वेट है ना, जो बर्डन है अंकल वेडिंग बैंड का, जो उनके हस्बैंड ने उनको रिंग दी थी या जिस मैरिज में वो बंधी थी, वो आज उनके लिए काफ़ी टाइट और कह सकते हैं काफ़ी हैवी साबित हुई। अब उस वेट का भार वो नहीं सह सकती। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। अंकल वेडिंग बैंड की जो ये रिंग है वो उनके हाथ में एक तरीके से क्या साबित हो रही है, एक बर्डन साबित हो रही है। ये आप देख सकते हैं अबाउट द इमेज ऑफ अंकल वेडिंग बैंड। दिस इज़ द इमेज अबाउट द मैरिज ऑफ ए गर्ल जब वो एक फाउंडेशंस में बंध जाती है। The second stanza tells us who Aunt Jennifer is. She is a woman with lot of creative energy but restricted by the constraints of her married life. She is described to be working with a piece of wool. She is obviously doing needlepoint to a panel that will be placed in a pillow, quilt or screen of some kind for the home. Her fingers are fluttering to create the beautiful image of the tigers. Her fingers flutter because of her excitement to express herself as well as nervousness due to the massive weight of the wedding band. अब पोइटेस क्या बता रही है, शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स कि जो पोइटेस एड्रीना रिच वो क्रिएटिव एनर्जी को दिखाती है, पर वो इस मैरिड लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड है, बंधी हुई है। वो अपने हाथों का यूज़ करके नीडल पॉइंट से पैनल पर, इस टेपेस्ट्री पर इसको तो टाइगर्स को तो बना लेती है, पर अब उसकी फिंगर्स में जान नहीं रही है, अब उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं। और जो मैरिज बैंड है, जो वेडिंग बैंड, दैट वाज द रिंग विच इज़ ऑल्सो बी टेकन बाय हर हस्बैंड इन द टाइम ऑफ द मैरिज, वो अब उसके लिए एक तरीके से वेट बन चुकी है, भार बन चुकी है। और जो फ्रीडम है और डिग्निटी है टाइगर्स की, वो कंट्रास्ट कर रही है वो अपनी मैरिज के साथ। वो ये कह रही है कि ये तो मैन को दिखाते हैं पर ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वो सिंबलाइज करती है वेडिंग बैंड को। वो ये कह रही है कि जो वेडिंग बैंड है ना, जो उसकी फिंगर में वेडिंग बैंड है, वो उसके लिए एक बर्डन बन रहा है। This weight is not something she enjoys, as the band is described to sit heavily on her hand and keeps her from the only sense of expression she has, her needle point. वो ये कह रही है जो रिंग है ना मेरे हाथों में, मैं इसको enjoy नहीं कर रही है, मेरे लिए एक वेट बन रही है, मेरे लिए भार बन रही है।
इन द थर्ड स्टैंजा पोइटेस क्या कहती है? शी सेड व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। वो ये कह रही है जब आंट की डेथ हो जाती है, आंट जेनिफर टाइगर एक तरीके से एड्रिनी रिच ने अपने बारे में ही बताया है, जब उनकी डेथ हो जाएगी, व्हेन आंट इज़ डेड, जो उनके हैंड्स होंगे ना, उनके हाथ होंगे, वो टेरिफाइड करेंगे, कांपेंगे, वो भी रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, उनके हाथों में वो अंगूठी भी रहेगी और उस अंगूठी पर रूल करने वाला इंसान और उनकी लाइफ में जितनी भी कमांड उन्हें मिली, जिस चीज़ों को उन्होंने डोमिनेट किया, वो चीज़ भी रहेंगी। जो टाइगर है पैनल पर, जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, उनके मरने के बाद वो टाइगर फिर भी ऐसे आज़ाद घूमते रहेंगे, उनमें गर्व होगा, घमंड होगा, अनअफ्रेड होंगे, बिना डरे, और प्रेंसिंग उछलते रहेंगे। इट मीन्स पोइटेस ये बता रही हैं कि अगर मस्कुलिन इन मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी, अगर विमेन डोमिनेशन सहती है, अपराध सहती है, आवाज़ नहीं उठाती, शी इज़ नॉट एबल टू क्रिएट ए वॉइस, टू रेज ए वॉइस, तो क्या होता है, वो ये